نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے جب تک تم مسلمان ایسے لوگوں سے نہیں لڑو جن کی شکلیں بالکل ریڈ، لال، ان کے ناک بالکل فلیٹ ہو، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہو اور چہرے بالکل شیلز کی طرح فلیٹ ہو، اور جن کے جوتے بالوں سے بنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد اپنی وفات تک پورے عرب کو فتح کر لیا اور مسلمانوں کی ایمپائر پورے عرب میں پھیل چکی، جس کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سالوں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار عرب سے نکل کر انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی ایمپائر بنائی اور پہلی بار مسلمان دنیا کے سپر پاور بنے۔ لیکن صرف 30 سال حکومت کے بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور خلافت ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں، جنہوں نے پھر مسلمانوں کی اس ایمپائر 90 ایئرز تک حکومت کی اور اسے راشدون خلافت کی اس سائز سے بڑھا کر اتنے علاقے تک پہنچا دیا۔ امیہ خلافت میں اتنے بڑے علاقے کو فتح کر لیا، لیکن بنو امیہ کی خلافت میں ایک بہت بڑا مسئلہ کہ یہ خلافت صرف اور صرف عربوں کی، جس میں نان عرب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس حد تک عرب کہ اتنی بڑی ایمپائر کے باوجود عرب ہمیشہ اس پوری ایمپائر باقی عوام سے بہت کم ملتے تھے اور کسی نان عرب کو عرب سے شادی کرنا امپاسبل، اور بنو امیہ کی گورنمنٹ سارے پوسٹ صرف عربوں کے پاس تھا۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح آج UAE اور سعودی پاکستانی اور انڈینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس سب سے تنگ آ کر امیہ خلافت کے خلاف ان کے ملک کے اندر سے ہی بغاوت ہوئی اور ایک اور خاندان عباسیوں نے خلافت سنبھالی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھا۔ اب عباسیوں کے ٹائم پر مسلمانوں کی طاقت اپنی پیک تک پہنچی، جسے ویسٹ اسلامک گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے، جب بغداد عباسی خلافت کا کیپٹل دنیا کی سب سے طاقتور سٹی تھی۔ عباسی خلافت نے دنیا کی سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی یونیک کام کیا کہ انہوں نے اپنے کیپٹل بغداد کے اندر دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے، اور اس لائبریری کو دنیا کی بہترین کتابوں، سٹوریز اور پوئٹری سے بھر دی، جس کی وجہ سے دنیا کے سارے انٹلیکچوئل لوگ، سائنٹسٹ، پوئٹس، آرٹسٹ سب اپنے علاقے چھوڑ کر یہاں اس سٹی میں جمع ہونے لگے۔ عباسی خلیفہ نے اس ہاؤس آف وزڈم ایک پورشن ٹرانسلیشن کے لیے بنائی تاکہ یہاں پر لوگ بیٹھ کر دنیا کے پرانے عظیم لوگوں کی رائٹنگز کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکیں، اور جب یہ ٹرانسلیشن شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ عربی زبان دنیا کی سب سے طاقتور زبان بننے لگی۔ جس طرح آج انگلش زبان، عباسی خلافت نے دنیا میں پہلی بار سائنٹسٹ کو اپنے ریسرچ کرنے کے لیے فنڈنگ کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ سامنے آئے، جیسے کہ بغداد کے اس ہاؤس آف وزڈم ہیڈ جس کا نام تھا الخوارزمی، جنہوں نے پہلی بار دنیا میں الجبرا انٹروڈیوس کیا، one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. جو آج بھی دنیا کی سائنس میں بہت بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ عباسی خلافت میں سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹس بھی بہت آگے بڑھے، اور اسی دور میں الف لیل و لین جیسی کتاب لکھی، 1001 Nights، جس میں ایسی اسٹوریز لکھی گئی جن پر آج تک ہالی ووڈ میں موویز بنائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل الادین، علی بابا اور سمباد وغیرہ۔ ان شارٹ مسلمان دنیا کے سپر پاور اور انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں چیلنج کرے، لیکن جب بھی ہسٹری میں کوئی ایمپائر اس لیول تک پہنچتی ہے تو اس سے آگے صرف ایک ہی راستہ، ڈکلائن۔ ہوا یوں کہ عباسیوں سے پہلے امیہ خلافت، ایز وی نو کہ صرف عربوں کی خلافت، لیکن عباسی خلافت امیہ سے بالکل اپوزٹ، مطلب اس خلافت کے دور ایمپائر کے ہر کونے سے لوگ گورنمنٹ میں شامل ہیں، پرشینز، ٹرکس، گریک سب، اور ایک عباسی خلیفہ نے ترکوں کی ایک بہت پاورفل فوج بھی بنائی، سلجوق فوج، اور یہ فوج ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ اس نے عباسی خلافت کو مضبوط کرنے کے بجائے خلافت کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کے بعد خلیفہ صرف ایک نام کا خلیفہ اور ملک کی ساری طاقت سلجوق فوج کے پاس۔ یہ ایسا ہے جیسے آج کسی ملک کا پرائم منسٹر صرف نام کا پرائم منسٹر اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو۔ سلجوق فوج کے کنٹرول کے بعد اسی فوج کی وجہ سے آہستہ آہستہ عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ان کی اتنی بڑی ایمپائر ہر طرف بغاوتیں اسٹارٹ ہونے لگی، جس سے آخر یہ اتنی بڑی ایمپائر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا۔ اس سب سے بہت سال پہلے پہلی خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سارے علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو انہوں نے کرسچنز کی سب سے ہولی سٹی یروشلم کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد اگلے 450 سال کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکے، لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان بہت چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے تو اس ٹائم یورپ کے کرسچنز نے فل فائدہ اٹھایا اور یروشلم فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ سٹارٹ کی، The Crusades، The mightiest battle between Christianity and Islam. اور آخر 1099 انہوں نے فلسطین اور یروشلم فتح کرنے کے بعد ہزاروں مسلمانوں، بچے، عورتیں، بوڑھوں کو شہید کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا۔ ایک کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے مسلمان ماؤں سے ان کے بچے چھین کر بڑی بڑی بلڈنگ سے نیچے پھینک دی۔ مسلمانوں نے کروسیڈرز سے بھاگ کر گھروں اور مسجدوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن کروسیڈرز نے بجائے اس کے کہ ان کو نکالا جائے، کروسیڈرز نے ان گھروں کو باہر سے آگ لگا دی، جس سے ہزاروں مسلمان جل کر راکھ ہو گئے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے تو آج بھی فلسطین یہی سب کچھ ایگزیکٹلی اسی طرح
को भी अपने साथ ले गए, जो हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया। इस सब जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद किया जाता। सलाहुद्दीन अयूबी 25 साल की एज में अपने चाचा के साथ इराक छोड़कर इजिप्ट की तरफ गए और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इजिप्ट के बादशाह सुल्तान बने। ये बहुत लंबी कहानी है, जिक्र करिए। अब जब यहाँ इजिप्ट सलाहुद्दीन अयूबी इजिप्ट के बादशाह बनने की तरफ जा रहे हैं, तो इसी दौरान यहाँ से बहुत दूर मंगोलिया में एक छोटे से गाँव के एक छोटे से कबीले के सरदार के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था तैमुजिन चंगेज खान। यस, सलाहुद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को वापस कोने की तरफ लेके जाना और दूसरे ने मुसलमानों को ऐसा तबाह करना जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। फलस्तीन और स्पेशली जेरूसलम को होने के बाद मुसलमानों का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं था, लेकिन इस दौरान सबसे जबरदस्त मुस्लिम स्कॉलर्स उलमा ने लेके आया, क्योंकि इससे पहले जो मुसलमान हर वक्त आपस में लड़ते रहते और बहुत सारे फिरकों में डिवाइडेड, उन्हें कुछ बहुत अजीम स्कॉलर्स एक ही गोल पर यूनाइट करना शुरू किया कि किसी भी हाल में फलस्तीन को दोबारा फतह कर, जिससे अगले कई सालों मुसलमान किंगडम्स की यंग पॉपुलेशन के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई। लेकिन फिर भी मुसलमानों का ऐसा कोई एक लीडर नहीं जो मुसलमानों को यूनाइट करके क्रिश्चियंस पर हमला कर सके। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने इजिप्ट का सुल्तान बनने के पहले तो क्रिश्चियंस के एक ग्रुप से डील कर कि अगले 10 साल तक बिल्कुल अमन हो और हम एक दूसरे पर हमला नहीं कर, ऑलमोस्ट सुलह हुदैबिया की तरह। इन 10 सालों को यूज करके सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू किया और फिर आखिर इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान बादशाह बन चुके हैं और दुनिया के सारे मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखने लगे। उस जमाने के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी सलाहुद्दीन अयूबी को सपोर्ट किया, जिनमें से सबसे बड़े स्कॉलर का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर, जिनकी सलाहुद्दीन अयूबी भी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज लेकर क्रूसेडर्स पर हमला कर दिया और साल 1192 में जेरूसलम को मुकम्मल तौर पर फतह करके सिक्योर कर लिया। 1192 मुसलमानों की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट साल, क्योंकि इस साल एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी ने इतनी बड़ी फतह हासिल की और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी इंडिया पर हमला करके इसे फतह करना और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पर। अब ऑलमोस्ट 100 साल बाद मुसलमान आखिरकार दोबारा थोड़ा स्टेबल होने लगे और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस मिलने लगी। लेकिन अब जब मुसलमानों को थोड़ी कामयाबी मिल चुकी तो इस सब से 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका। तो इस सबसे बहुत चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट कर दिया और बहुत तेजी से हर तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन और उसका बाप मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का सरदार था। लेकिन तैमुजिन के बचपन में एक दूसरे कबीले ने उसके बाप को सीक्रेटली जहर देकर मार दिया, जिसके बाद तैमुजिन और उसका पूरा खानदान बहुत सख्त जिंदगी गुजारता रहा। और कहा जाता है कि एक वक्त में तैमुजिन चाइना में किसी और का गुलाम बनकर निकल गया, लेकिन फिर तैमुजिन ने आखिर वापस मंगोलिया अपने कबीले को यूनाइट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये मंगोल एम्पायर बढ़ने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि मंगोलियंस ने तैमुजिन को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया, चंगेज खान, जिसका मतलब सबसे बड़ा बादशाह। खान, ये नाम खान इससे पहले टर्किश ज़बान में भी यूज किया जाता था, लेकिन चंगेज खान की वजह से ये नाम पूरी दुनिया में हमेशा के लिए फेमस हो गया। मतलब कुछ सर्विस के मुताबिक आज दुनिया में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम में खान हो, जैसे कि शाहरुख खान, आमिर जैसे कि और इमरान खान। मंगोलिया को आज भी अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गरीब और आम समाज और उस जमाने में तो इससे भी बहुत ज्यादा कमजोर है। इसीलिए चंगेज खान के इस एम्पायर के बनने के बाद भी मंगोलिया के नेबर चाइना ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में चंगेज खान ने चाइना की कैपिटल बीजिंग को फतह कर लिया और पहली बार लोगों ने देखा कि चंगेज खान कितना जालिम और उसके जुल्म की कहानियां तो हम सब ने सुनी कि वो लोगों के सर काट कर उसके पिरामिड्स बनाया करता था। लेकिन ये जुल्म चंगेज खान को कोई शौक नहीं था, इस जुल्म से उसे बहुत बड़ा फायदा था। मतलब उसने अपनी पूरी फौज को 10 आदमियों के ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर 10 से 100 और फिर 100 से 1000 और 1000 से 10,000 के ग्रुप्स में। चंगेज खान ने अपनी आर्मी के लिए एक जंग बनाया कि हर 10 लोगों के ग्रुप में अगर एक बंदा भी जंग छोड़कर भाग जाए तो उसके ग्रुप के बाकी 9 लोगों के उसके सर काट दिए जाएंगे, जिससे चंगेज खान की आर्मी के सोल्जर्स एक दूसरे को जंग से भागने नहीं देते और जो भी भागने की कोशिश करता था उसे उसकी आर्मी खुद ही मार देती। इसके अलावा चंगेज खान ने जस्टिस का एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई भी इस एम्पायर किसी दूसरे का घोड़ा चोरी करे और पकड़ा जाए उसे उस एक घोड़े के बदले 10 घोड़े वापस कर देंगे और अगर वो वापस ना कर सके तो सिर्फ उसे नहीं उसके पूरे खानदान, बच्चे, बीवी, माँ बाप सबको मार दिया जाए। इस तरह चंगेज खान की ये जालिम एम्पायर बहुत तेजी से फैलने लगी और आखिर मुसलमानों की एक एम्पायर ख्वारिज़्म से टकरा गई। पहले तो चंगेज खान का कोई इरादा नहीं कि वो मुसलमानों से जंग करे, इसीलिए उसने ख्वारिज़्म के बादशाह के साथ दोस्ती का पैगाम एक डेलीगेशन भेजा
लेकिन ख्वारिज़म के बादशाह ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें रिहा करने के लिए चंगेज़ खान ने अपने एम्बेसडर को बादशाह की तरफ भेजा, लेकिन बादशाह ने उस एम्बेसडर का सर बिगाड़ दिया। अब ये बहुत बड़ी बात, एम्बेसडर या मैसेंजर को कत्ल करना इस्लाम और दुनिया के हर कानून बहुत बड़ा जुर्म है। जब मंगोलिया में चंगेज़ खान को इसका पता चला तो उसे बहुत गुस्सा और अब उसकी इज्जत का सवाल भी, तो उसने अपनी सबसे बड़ी फौज 1 लाख की फौज लेकर ख्वारिज़म की तरफ रवाना हुआ और यहाँ मुसलमानों और मंगोल्स के दरमियान अगले 100 साल की जंग शुरू। चंगेज़ खान ने बहुत तेजी से ख्वारिज़म की इस पूरी एम्पायर को खत्म कर दिया और हर सिटी को फतह करने के बाद वहाँ की सारी पॉपुलेशन के सर काट दिए और फिर उनके पिरामिड्स बनाए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि चंगेज़ खान से बदला लेना कोई आसान काम नहीं। चंगेज़ खान के हमले से पहले ख्वारिज़म एम्पायर, जिसमें आज अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे इलाके हैं, इनकी आबादी 2 मिलियन 20 लाख के करीब और चंगेज़ खान के हमले के बाद अब यहाँ की आबादी सिर्फ 2 लाख रह गई। मतलब चंगेज़ खान ने 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया। इन इलाकों को फतह करने के बाद एक दिन चंगेज़ खान ने सारे मुसलमानों को एक मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर चढ़ा और सारे मुसलमानों से पूछा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर आजाद बनाकर भेजा गया। इसके बाद मंगोलियन एम्पायर और भी बढ़ती और ऊपर रशिया को भी फतह कर लिया। लेकिन उसी दौरान मंगोलिया में चंगेज़ खान बहुत और अपने बाद अपने बेटे दुगुदाई को सबका बादशाह बनाया और अपनी पूरी एम्पायर को अपने बेटों में डिवाइड कर दिया। लेकिन चंगेज़ खान के जाने के बाद मंगोल एम्पायर हर तरफ फैलती गई और आखिर बहुत साल बाद चंगेज़ खान के मुल्क हलाकू खान ने एक और बहुत बड़ी फौज तैयार की और उसे लेकर बगदाद अब्बासी खिलाफत के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सिटी। अब चाहिए तो ये था कि उस वक्त के मुसलमान यूनाइट होकर मंगोल से लड़े, लेकिन उस वक्त के मुसलमान इतने फिरकों में डिवाइड हो चुके हैं कि मंगोल एम्पायर से लड़ने से ज्यादा वो एक दूसरे से डिबेट्स और मुनाजरों में ज्यादा इंटरेस्टेड। हलाकू खान ने हर तरफ से बगदाद को घेर लिया और फिर आखिर 1215 बगदाद को मुसलमानों से छीन लिया और मुसलमानों के खलीफा को कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब्बासी खिलाफत 500 साल तक हुकूमत करने के बाद नेशन की नींव खत्म होने के बाद बगदाद फतह करने के बाद हलाकू खान की फौज ने इतना हमला मारा कि कहा जाता है कि बगदाद में दरियाए खलाज का कलर मुसलमानों की लूट की वजह से कई दिन तक बिल्कुल रेड और रेड कलर के बाद यूफ्रेटिस रिवर का कलर ब्लैक हो गया, क्योंकि हलाकू खान ने बगदाद के हाउस ऑफ विज़डम, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, उसके सारे किताब जलाकर आग कर और उन्हें दरिया में फेंक दिया, जिसकी वजह से दरियाए फुरात का कलर कई महीने तक बिल्कुल ब्लैक था। हिस्ट्री में मुसलमानों पर इतना सख्त टाइम कभी भी नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे होली साइट्स को भी खत्म, क्योंकि अब्बासी खिलाफत को खत्म करने के बाद अब मंगोलों के सामने सिर्फ एक और सल्तनत है, ममलूक सल्तनत, और अगर ये इसे भी हरा देते तो मक्का और मदीना का कंट्रोल मंगोल्स के पास चला जाता तो वो 100% मक्का में काबा को गिरा देता। बट ऐसा नहीं। जब मंगोल्स बगदाद फतह करके भागे तो ये देखकर इजिप्ट के ममलूक सुल्तान ने अपने जनरल बेबर्स के साथ मंगोलों से लड़ने का फैसला किया। सुल्तान को सबने समझाने की कोशिश की मंगोलों से लड़ना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस जमाने के लोग और कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी ये कह दिया कि ये मंगोल असल में याजूज माजूज और बस इसके कुछ ही अरसे बाद क़यामत आने वाली, तो इनसे जीतना नामुमकिन। लेकिन फिर सुल्तान और उसका जनरल बेबर्स मंगोलों के खिलाफ एक फौज जमा करने लगे। अब इसी दौरान मंगोलिया में हलाकू खान का भाई, जो उस वक्त पूरे मंगोल एम्पायर का बादशाह था, मार गया। तो हलाकू खान मजबूरन अपनी बड़ी फौज लेकर वहां से वापस चला और एक छोटी फौज को यहाँ पर छोड़ा और आखिर फलस्तीन में एक जालूत के मकाम मंगोल और मुसलमानों की फौज आमने सामने हुई। ये एक जालूत इलाका फलस्तीन है और इसे एक जालूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर इससे हजारों साल पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े वॉरियर जालूत को हराया और अगेन अब हजारों साल बाद यहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही ये कमजोर मुसलमानों पहली बार द ग्रेट मंगोल एम्पायर बहुत बुरी तरह हरा दी और मंगोल एम्पायर की एक्सपेंशन को हमेशा के लिए मतलब ये जंग हारने के बाद मंगोल एम्पायर कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ा। ये थी मंगोल और मुसलमानों की जंग, जिसका इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया, जो आखिर एक जालूत की जंग के साथ खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से मंगोल्स का कंट्रोल और पूरे दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही मंगोल यहाँ के रिलीजन यही इस्लाम को स्टडी करने लगे और आखिर इतना इम्प्रेस हुआ कि सारा मंगोल सुल्तान जो इन इलाकों में आबाद थे मुसलमान हुए और ये सारे मुसलमान दोबारा इस्लाम के कंट्रोल में। अगर आप चंगेज़ खान की औलाद के सारे नाम पहले इंसानों के नाम बिल्कुल मंगोल नाम, जैसे कि रोगोदाई, चोची, हलाकू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके नाम मंगोल से मुसलमान नाम होने लगे, जैसे कि मोहम्मद, तैमूर, यूनुस और बाबर। क्योंकि इंडिया पर बहुत साल हुकूमत करने वाली मुगल एम्पायर इसी चंगेज़ खान की औलाद में से हज़रत उमर और चंगेज़ खान एक बात कॉमन कि इन्होंने अपने ज़माने की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एम्पायर्स बनाई। लेकिन इन दोनों एम्पायर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज चंगेज़ खान को सिर्फ एक जालिम के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन हज़रत उमर को पूरी दुनिया एक ग्रेट लीडर मानती है।